Hello. Good morning, ma'am. Okay. Good morning, Good morning, ma'am. everybody. So in the last class, what we have discussed? Just tell me फटाफट. उसके बाद we'll start the class. What we have studied in the last class? टेल मी, किसी को भी टॉपिक भी नहीं पता है? मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, डिटेल में नहीं पूछ रही हूँ, जस्ट टॉपिक आई एम आस्किंग. टॉपिक भी अगर आप लोग को याद नहीं रहता है तो वेरी बैड. 10 बारी टॉपिक बताती हूँ मैं आप लोग को कम से कम. ओके, forget about it. So now we are discussing about your 6th unit, that is community nutrition, and in the last class we have discussed about nutritional problems and programs in India. So the topic today we are going to discuss is about community food supply or food hygiene. So what is community food supply? It is a system in which sustainable food production, processing, distribution and consumption are integrated to enhance the environmental, economic, social and nutritional health of that particular area. So community food system is a system in which there is a sustainable food production. मतलब क्या क्या food एक community के area, geographical area के हिसाब से production में आता है. जैसे आपका यूपी हो गया, यूपी में मोस्ट ऑफ द टाइम शुगर केन प्रोडक्शन होता है ज्यादा. फिर हरियाणा में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हीट प्रोडक्शन होता है, राइस प्रोडक्शन होता है. वैसे इन डिफरेंट एरियाज इन आवर कंट्री देयर आर डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ द फूड. सो अ कम्युनिटी फूड सिस्टम इज a system in which there is a sustainable food production. that its processing, किस तरीके से प्रोसेस होना है, यानी कि किस तरीके से it has to be separated from the crop. उसके बाद how it has to be स्टोर्ड, वो कंपनीज तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, स्टोरेज कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देन उसका कंजम्पशन कैसे होगा. इट इज अ इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ सस्टेनिंग फूड प्रोडक्शन, इट्स प्रोसेसिंग, distribution and consumption to enhance the environmental, economic, social and nutritional health of that particular area. So that is known as community food supply. Now we will be dealing with food hygiene and control. तो जब हम लोग सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर रहे थे तो सेकेंड यूनिट में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फूड हाइजीन, फूड प्रिपरेशन, फूड स्टोरेज एंड transportation. Now we are dealing with food hygiene. So food is a potential source of infection and is liable to contaminate by microbes at any point during its journey from producers to the consumers. यानी कि जो हमारा food होता है ना, that is a very susceptible or potential source of any kind of infection. उसके अंदर जरा से हल्के से भी आप कंटामिनेटेड हो, या आपके हाथों आपने हैंड वॉश नहीं किया है प्रॉपरली, या आप where you are keeping that food और storage proper नहीं है, तो that food can be contaminated. Last class में we have discussed already कि आपका food production कैसा होना चाहिए, food storage कैसा होना चाहिए, फिर जो आपका food handlers हैं, जो आपके food को handle करते हैं, उनका physical health, उनका health भी is very important in food hygiene. So food is a potential source of इन्फेक्शन, क्योंकि हम उसको इंजेस्ट करते हैं, हम उसको इनटेक करते हैं. तो अगर जरा सा भी कंटामिनेटेड है तो दैट कंटामिनेटेड फूड कैन गो इनटू आवर बॉडी, इट विल raise the infectious products in the body. So food is a potential source of infection and is liable to contaminated by small microbes or a very small quantity of microbes at any point during its journey from producers, यानी कि फार्मर्स जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, एंड वी आर द कंज्यूमर. तो कहीं पर भी अगर किसी भी तरीके का anything will happen to the food if the food producers or transporters or storagers or consumers are not taking proper good food hygiene, so the food can be contaminated, which is very harmful for the body. So food hygiene may be defined as the sanitary science which aims to produce food which is safe for the consumers and of good keeping quality. That means food hygiene को हम कैसे define कर सकते हैं? It is basically a sanitary science, यानी कि जो decontamination procedures होते हैं, food hygiene, food storage procedures होते हैं, तो that is known as sanitary
science. So food hygiene is defined as the sanitary science which aims to produce the food which is safe for the consumers and for good keeping safe. यानी कि जो फूड है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे जो मेन एम है फूड हाइजीन का, द मेन एम ऑफ द फूड हाइजीन इज टू मेक द फूड safe and to make the food good for keeping for more time of period. So that is known as food hygiene. It covers a wide field and includes the rearing, feeding, marketing and slaughter of animal as well as the sanitation procedures designed to prevent bacteria of human origin reaching foodstuff. So basically food hygiene is a process in which we are keeping the food safe for the individuals. जैसे फार्मिंग हो गया, फीडिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, इवन their sanitation process is also designed to prevent the bacteria from the human resources. जो बैक्टीरिया होता है from human resources, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया होगा, इकोलाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ही हमारे गट सिस्टम को मेंटेन करके रखता है. अगर एक्सेसिव इकोलाई होगा तो पेशेंट जो पर्सन है दैट कैन इंड्यूस डायरिया, पर्सन को डायरिया हो जाएगा. तो food hygiene is basically keeping the food safe for every individual use. तो ये कहाँ प्रोसेस करता है? प्रोडक्शन में प्रोसेस करता है, मतलब प्रोडक्शन में हेल्प होता है, फिर प्रोसेसिंग में हेल्प होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, उसके बाद में स्टोरेज में हेल्प करता है एंड रीचिंग आउट द कंज्यूमर्स. जो हम लोग हैं, जो हम फूड बाहर से खरीदते हैं, उन लोगों तक फूड प्रॉपर कंडीशन में मिले, दैट सिस्टम इज नोन एज योर फूड hygiene. Okay, so next is food control. Aspects of food control. कौन से aspects हैं जो food control करते हैं या फिर food sanitation में help करते हैं? The objectives of food has 3 aspects: economic, aesthetic and public health. Economic मतलब food production का main aim क्या होता है? Maintain the nutritional health of the individual or maintain the nutritional health of the country, plus economic stratification यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बिकॉज यू नो 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज वर्किंग विद एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट. तो जो हमारा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है वो इतना स्ट्रांग है कि वो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इकोनॉमी कैसे बनती है? हमारी जो इकोनॉमी होती है दैट इज अ प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ द कंट्री. जो भी हमारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं कंट्री के अंदर, जैसे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, या फिर हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो गया, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है हमारा, फिर रिसर्च डिपार्टमेंट है. इन सब को मिलाकर हमारी कंट्री का इकोनॉमिकल स्टेटस बनता है. यानी कि ये सब जो सिस्टम्स हैं आपके, ये जो भी प्रोडक्शन इनके थ्रू होता है, जैसे आपके रिसर्च डिपार्टमेंट्स हुए या आपका रिसर्च विंग हो गया, इससे क्या निकलते हैं? साइंटिस्ट आते हैं. जैसे हमारा CSIR हो गया या फिर इसरो हो गया, ये हमारे स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं, फिर हमारे कम्युनिटी रिसर्च सेंटर्स हैं, इनसे हमारे साइंटिस्ट आते हैं. साइंटिस्ट क्या करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नई डेली इनके नए रिसर्च होते हैं. नए रिसर्च जो होते हैं वो ईयरली बेसिस पे हमारे इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाते हैं. वो क्या करते हैं कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी होता है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जाए तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, या किस तरीके से चीजों के अंदर क्या चीजें मिलाई जाए उससे नया प्रोडक्ट बनेगा. वो नया प्रोडक्ट हमारे इंडियन कल्चर के लिए या हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना हेल्प करेगा, कितना हेल्प नहीं करेगा. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो चीजें बाहर से एक्सपोर्ट की जाती हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं, वो इंपोर्ट ना करके इंडिया में ही उनका प्रोडक्शन किया जाए, तो दैट इज योर इकोनॉमी. फूड कंट्रोल है इकोनॉमी, यानी कि हमारे इकोनॉमिकल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो हमारे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है. एस्थेटिक मींस जो हमारी बाहर से चीजें इंपोर्ट होती हैं उन चीजों के लिए हमारे इंडिया में ही करना शुरू हो जाए. हु इज दैट डिस्टर्बिंग द क्लास? हर्ष. Okay, next is public health. So food control हम
जब से न्यूट्रिशन शुरू किया है तब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो भी फूड हेल्थ होता है, जो फूड प्रिपरेशंस होते हैं, फूड स्टोरेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द health of the individual. So these are the three aspects of food control: economic, aesthetic and public health. Notes I will give you today everything. जो जितने भी सारे मैंने क्लासेस लिए हैं सबके नोट्स मैं आपको एक साथ आज ही दे दूंगी. Fine. Then different branches of food hygiene, which are milk hygiene, meat hygiene, fish, egg, hygiene of vegetables and fruits, food handlers hygiene and sanitation of eating places. So these are the things, different branches जिन जो हमारे फूड को मेंटेन करते हैं या फूड हाइजीन में इंक्लूडेड है. तो क्या क्या है? इंपॉर्टेंट इज मिल्क हाइजीन, क्योंकि milk is something which we consume daily on daily basis. वो चाहे आपका चाय हो गया या कॉफी हो गया या मिल्क शेक्स हो गया, प्रोटीन शेक्स हो गया, anything we are consuming milk on a daily basis or daily basis we are using milk. So it includes milk hygiene. Different branches of food hygiene are milk hygiene, then meat hygiene, fish hygiene, egg hygiene, hygiene of vegetable and fruits, फूड हैंडलर्स हाइजीन. ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, फिर भी we will discuss today. Then sanitation of eating places, मतलब where you are sitting and having your food, that sanitation is also very important. So we will deal one by one. So first is your milk hygiene. So basically milk is an efficient vehicle for transferring of the disease agents, यानी कि जितने भी microbes होते हैं, जैसे आपके डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, फंगई हो गया, पैरासाइट्स हो गए, या और भी अडल्ट्रेशन मिल्क के अंदर होता है. जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस किस चीज का अडल्ट्रेशन होता है. जो हम वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं उसका अडल्ट्रेशन होता है, वो बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड कराता है. फिर यूरिया का अडल्ट्रेशन होता है और मिल्क पाउडर का एडल्ट्रेशन होता है. तो these things are very much dangerous to the body. So milk is an efficient vehicle for a great variety of disease agents. जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, मिल्क की वजह से वो सब बॉडी के अंदर जा सकते हैं. तो मिल्क गॉट कंटामिनेटेड वेरी इजीली. जैसे यूटेंसिल्स जो हम यूज कर रहे हैं मिल्क कलेक्शन के लिए या मिल्क बॉइलिंग के लिए, जो यूटेंसिल हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रॉपर अगर वॉश नहीं है तो खराब हो जाएगा. पर्सनल हाइजीन ऑफ द पर्सन जो भी हैंडल कर रहा है मिल्क के लिए, मिल्क लेने के लिए, या फिर घर में कंपनी जो आपकी मिल्क प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं वहां पर जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, उनका अगर फिजिकल हाइजीन या पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं है तो दैट कैन बी दे कैन कंटामिनेट द फूड. देन स्टोरेज एनवायरनमेंट और वाटर नॉर्मली जिस वाटर से वेसल्स जो है वो वॉश किए जा रहे हैं, अगर वो भी प्रॉपर क्लीन नहीं है तो दैट कैन ऑल्सो कंटामिनेट योर milk. So milk is an efficient vehicle for transferring most of the disease causing agents, and milk can get contaminated by various sources like utensils which we are using for boiling the milk or storage of the milk. Then personal hygiene of the handlers, जो लोग उसको हैंडल करते हैं, प्रोडक्शन को हैंडल करते हैं या फिर स्टोरेज को हैंडल करते हैं या ट्रांसफरिंग को हैंडल करते हैं, तो देयर पर्सनल हाइजीन हैज टू बी मेंटेन्ड वेरी प्रॉपर्ली. देन स्टोरेज एनवायरनमेंट मींस वेयर द फूड इज बीइंग स्टोर्ड. जैसे जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, पास्चराइज्ड मिल्क को हम मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए 3 to 4 आवर्स तक हम उसको सिर्फ बाहर रख सकते हैं. उसके बाद में वो कर्डल होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाता है. सो for reducing the milk to get contaminated or reducing the milk to get spoiled, we have to keep the milk in the fridge. So that is the storage environment. अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो खराब हो जाएगा, टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप की क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है. एंड वाटर फॉर स्टोरेज, वॉशिंग के लिए, या फिर जो यूटेंसिल्स वी आर यूजिंग फॉर बॉइलिंग द मिल्क, अगर उसके लिए वाटर अच्छा नहीं है तो दैट कैन, वाटर के अंदर क्लोरीन है तो क्लोरीन और जो वेसल है वो कंबाइंड होकर फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं. देन आएगा आपका, ये तो हुआ कि किस तरीके से मिल्क हाइजीन मेंटेन करना है. नेक्स्ट आएगा मिल्क बॉर्न डिजीजेस, यानी कि अगर सपोज मिल्क इज ऑलरेडी गेट्स कंटामिनेटेड तो क्या क्या डिजीज कंडीशन है जिनकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंसेस आने लगते हैं. तो infections of animals, that is tuberculosis, streptococcal infections, anthrax. These are the disease conditions due to
मिल्क ड्यू टू कंटामिनेटेड मिल्क, क्या क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस है एंड एंथ्रेक्स है. दी एंथ्रेक्स and streptococcal infections are bacterial infection and tuberculosis is the infection of the lungs that is commonly known as TB. Okay, so next is clean and safe milk. First essential is a healthy and clean animal. Obviously जिस एनिमल से मिल्क एक्सट्रैक्ट करना है दैट हैज टू बी हेल्दी एंड क्लीन, उसको पहले से ही साफ करना है एंड हैज टू बी फ्री फ्रॉम एनी डिजीज कंडीशन. देन सेकेंडली द प्रीमाइसेस वेयर द एनिमल हाउस एंड मिल्क शुड बी सैनिटरी. दैट मीन्स जिस एरिया में एनिमल्स को हाउस किया जाता है, जिस एरिया में एनिमल्स के लिए जगह होती है, दैट हैज टू बी cleaned properly, sanitized properly. Then the person who is milking the milk has to be well hygienic, यानी कि patient को भी not patient, sorry, I'm sorry, not patient, the person who is milking the cows or buffaloes has to maintain the proper personal hygiene. तो first point क्या है आपका? The first essential point is healthy and clean animal. The animal who is producing the milk, cow, buffalo, has to be cleaned properly and they have to be healthy, any disease free, they have to be any disease free. Then secondly, the premises where the animal is housed has to be cleaned properly and the person who is milking the milk has to be properly sanitized. Then milk vessels must be sterile and kept covered. Then water supply should be bacteriologically safe. So these are the steps कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए प्रॉपर सेफ मिल्क के लिए. कि पहला क्या है, the animal has to be healthy and clean. The premises where the animal is housed has to be clean and milk properly. Then vessels which are used to collect the milk has to be sterile and kept covered. Then water supply should be bacteriologically safe. मतलब जो water supply हो रही है animals को wash करने के लिए या जो area है जो जहाँ पर प्रीमाइसेस हैं जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, उस एरिया को सैनिटाइज करने के लिए जो वाटर सप्लाई हो रही है दैट हैज टू बी बैक्टीरियोलॉजिकली सेफ. कोई भी बैक्टीरिया या किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. देन मिथाइलिन ब्लू टेस्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में ही समझा दिया है, पास्चराइजेशन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया. तो बेसिकली जो मिल्क होता है, जो मिल्क हाइजीन है, जो फूड हाइजीन का ब्रांच है फर्स्ट मिल्क हाइजीन, उसके जनरली मैं बता देती हूँ क्या क्या है. पहली चीज क्या है कि मिल्क जो है दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा हाईली एफिशिएंटली और हाईली प्रोन होता है गेटिंग एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन. वो कंटामिनेशन 4 चीजों की वजह से हो सकता है. पहला यूटेंसिल्स जो हम जो मिल्क स्टोरेज के लिए यूज करते हैं. देन पर्सनल हाइजीन ऑफ द हैंडलर्स, जो लोग भी मिल्क स्टोरेज को हैंडल करते हैं उनका पर्सनल हाइजीन हैज टू बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली. देन स्टोरेज एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में उनको स्टोर किया जा रहा है, कोल्ड एनवायरनमेंट है, हॉट एनवायरनमेंट है, प्रॉपर क्लीन एनवायरनमेंट है या नहीं है, कोई कंटामिनेटेड एरिया तो नहीं है, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड वेरी क्लोजली. देन वाटर सप्लाई किस लिए, वाटर सप्लाई फॉर cleaning of utensils, not mixing in the milk but cleaning of the utensils, cleaning of the storage places and cleaning of the animals, that has to be checked properly. इनकी वजह से जो मिल्क है वो कंटामिनेट हो सकता है. नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि सपोज अभी मिल्क आपका कंटामिनेट हो गया, तो मिल्क कंटामिनेशन की वजह से क्या क्या मिल्क बॉर्न डिजीजेज हैं. तो दीज आर 3 टाइप ऑफ डिजीजेज, ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस एंड एंथ्रेक्स. मिल्क कंटामिनेशन की वजह से ये 3 डिजीज कंडीशंस होती हैं. उसके बाद मिल्क को क्लीन एंड सेफ रखने के लिए क्या क्या मेजर्स होने चाहिए. मेजर्स टू कीप द मिल्क सेफ एंड क्लीन, द फर्स्ट मेजर इज healthy and clean animal. Second, the premises has to be cleaned and properly sanitized. Third, the vessels which we are using for collection has to be sterile and the supply should be bacteriologically free. So these are the milk hygiene process. Then next is your meat hygiene process. The disease which may be transferred by or transmitted by eating wholesome meal are टेपवॉर्म इन्फेक्शंस, क्योंकि जो टेपवॉर्म है वो इजीली जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सरवाइव कर जाते हैं. तो फर्स्ट जो है वो है टेपवॉर्म इन्फेक्शन. देन फिस्कोला हिपेटिका, दीज आर द
two type of infections or two type of disease condition which will be transmitted by eating bad or contaminated meat. Then माइक्रोबियल इन्फेक्शंस में क्या क्या होते हैं? ट्यूबरक्लोसिस एंड फूड पॉइजनिंग. ट्यूबरक्लोसिस एंड फूड पॉइजनिंग ये माइक्रोबियल इन्फेक्शंस में होते हैं. तो नाउ फूड इंस्पेक्शन कैसे किया जाएगा? फूड इंस्पेक्शन और मीट इंस्पेक्शन. First is animal intended for slaughter are subjected to proper antemortem and postmortem inspection by qualified veterinary staff. ये कभी होता नहीं है, नॉर्मली जनरली नहीं करते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि एनिमल विच आर इंटेंडेड टू गेट स्लॉटर हैज टू बी checked properly before and after the death. Before and after the death, that is antemortem and postmortem inspection by a qualified veterinary staff. तो बेसिकली जैसे हम फूड को प्रॉपरली चेक कर रहे थे कि मिल्क को प्रॉपरली चेक कर रहे थे की सेफ कीपिंग के लिए कि उसके अंदर किसी भी तरीके का एडल्ट्रेशन तो नहीं है, किसी भी तरीके का कंटामिनेशन तो नहीं है. लैब टेस्ट होते हैं, जो पास्चराइज्ड मिल्क होते हैं उनको आगे प्रोसेस करने के लिए उनमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं. फूड अडल्ट्रेशन के लिए टेस्ट किया जाता है, किसी भी तरीके का वॉशिंग पाउडर, यूरिया या फिर पाउडर्ड मिल्क तो ऐड नहीं हुआ है उसके लिए टेस्ट होता है. फिर किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है मिल्क के अंदर वाइल ट्रांसपोर्टिंग और वाइल प्रोडक्शन, उसके लिए टेस्ट होते हैं. उसके बाद में जो मिल्क है उसको प्रॉपर तरीके से पास्चराइज्ड किया जाता है और आगे प्रोसेस डाउन किया जाता है. सेम उसी तरीके से मीट इंस्पेक्शंस होते हैं. तो द एनिमल विच आर गेटिंग अबाउट टू बी स्लॉटर, उनका बिफोर एंड आफ्टर देयर स्लॉटरिंग process that has to be very carefully checked. यानी कि एनिमल इंटेंडेड फॉर स्लॉटर, जो भी एनिमल है, जैसे वो आपका चिकन हो गया या फिर आपका रेड मीट हो गया, व्हाइट मीट हो गया, फिशेस हो गया, इन सबको बिफोर ईटिंग, नॉट बिफोर ईटिंग, antemortem means before getting it slaughter and postmortem means after getting it slaughter. The qualified veterinary staff has to inspect the meat properly. उसको आगे प्रोसेस डाउन करने के लिए, मतलब अगर वो कॉमर्शियली प्रोसेस हो रहा है तो कॉमर्शियली प्रोसेस करने के लिए उसको अच्छे से पहले वॉश किया जाएगा, फिर उसको पैक किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, फिर उसको पैक किया जाएगा, फिर आगे उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स में भेजा जाएगा. अगर जस्ट फॉर ईटिंग पर्पस और जस्ट फॉर होम पर्पस आप लेके आ रहे हो, तो शॉप में जाते हो आप, यू आर गेटिंग दैट एनिमल गेट स्लॉटर्ड, उसको फिर घर लेके आते हो, उसका प्रॉपर चेकअप नहीं होता है. बर्ड फ्लू फैलने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि बर्ड्स को कभी भी चेक नहीं किया जा रहा है और उनको इंडिविजुअल्स जो हैं या फिर जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो इजीली अवेलेबल होता है उनके लिए, और बिफोर देयर चेकअप उनका बिफोर भी चेकअप नहीं होता है, आफ्टर भी चेकअप नहीं होता है. ये नॉर्मल डेली लाइफ में होता है. बट कॉमर्शियली the animal which is getting to be slaughtered has been inspected before and after the death. So this is the meat inspection. Then meat inspection is a very important process before being accepted or rejected. यानी कि आप उसको क्यों accept कर रहे हो या आप उसको क्यों reject कर रहे हो, that is totally depends on the meat inspection, and that is antemortem and postmortem, before getting slaughtered and after getting it slaughtered. Then objectives for inspection, anti and post mortem inspections are, मतलब before death inspection and after death inspection के objectives क्या हैं? To screen all the animals destined to slaughter. जो भी animals हैं उनको स्लॉटर होने के टाइम पर कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि वो आगे कॉमर्शियली भी प्रोसेस होंगे. कॉमर्शियली मतलब जैसे बेकन बनते हैं या स्लाइसेस बनते हैं, वो कॉमर्शियली पैक होके डिफरेंट सुपरमार्केट्स में जाते हैं, वहां से लोग उनको कोल्ड फ्रीजर्स में रखते हैं, फ्रोजन फूड के रूप में उनको कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर लोग उनको काफी टाइम के लिए अपने फॉर इजी अवेलेबिलिटी के लिए उनको काफी टाइम के लिए अपने फ्रीजर्स में स्टोर करके रखते हैं. So to prevent the contamination of any type of disease condition or transferring any type of disease condition to the individuals who are consuming the food or who are consuming the non-vegetarian foods, we have to check, or the inspector has to check the animals before and after they get slaughtered. So first objective is to screen all the animals destined to get slaughtered. Second point is to ensure that animals are properly rested and has taken proper clinical information which will assist in the case diagnosis.
and judgment is obtained. That means जो भी एनिमल स्लॉटर होने हैं सबसे पहले तो उनको स्क्रीन करना है. अगर किसी भी तरीके का कोई भी डिजीज कंडीशन निकलता है तो वी हैव टू रिजेक्ट, और द इंस्पेक्टर हैज टू रिजेक्ट दैट एनिमल, कि वो उसका स्लॉटरिंग नहीं हो सकती है क्योंकि उसके अंदर डिजीज कंडीशन है. और डिजीज कंडीशन अगर उसको ऐसे ही स्लॉटर कर दिया जाएगा तो वो डिजीज कंडीशन किसी और को पास ऑन हो जाएगी, या फिर अगर उसको स्लॉटर किया जाएगा तो वही डिजीज कंडीशन बाकी एनिमल्स में भी स्प्रेड हो सकती है. देन टू आइडेंटिफाई द सिक एनिमल्स. बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है, इंस्पेक्शन का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी स्लॉटर होने हैं, जिन एनिमल्स को भी कट डाउन करना है, उनको किसी भी डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए, या अगर कोई भी सिक एनिमल है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्रीन आउट करना है. ओके सो ये हुआ आपका इंस्पेक्शन एंड उसका ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट आता है गुड मीट क्वालिटीज. क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? जैसे हमारे बेसिकली मिल्क की क्वालिटीज क्या क्या होती है कि इट हैज टू बी कंटामिनेशन फ्री, इट हैज टू बी अडल्ट्रेशन फ्री, it should provide basic calcium and phosphorus in the body, it should be well maintained and well properly packed hygieneously, and it is वेरी वाइट इन द कलर. तो ये सारी हमारी मिल्क की क्वालिटीज होती हैं. उस तरीके से हमारे गुड मीट की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? फर्स्ट इज इट शुड बी नीदर पेल पिंक नॉट डीप पर्पल टिंटेड. जो मतलब पेल पिंक नहीं होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी डीप पर्पल टिंटेड. डीप पर्पल टिंटेड का मतलब है कि देयर इज सम ब्लड क्लॉट्स आर देयर. तो ब्लड क्लॉट्स, और इट कैन बी assumed as the meat which are being consumed or which is going to be ready to get consumed, उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन है. तो दो चीजें ध्यान में रखनी है. कलर्स क्या क्या है? पेल पिंक नहीं होना है एंड डीप पर्पल टिंटेड नहीं होना है. देन इट हैज टू बी फर्म. टेंडर नहीं होना है, हार्ड नहीं होना है, क्योंकि अगर टेंडर है तो दैट कैन आइडेंटिफाइड एज एनी टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन. इट हैज टू बी वेरी फर्म, सॉफ्ट होना चाहिए. And it has to be elastic to touch. When you are touching or when you are handling the meat, you can easily identify कि वो fresh है या फिर वो काफी टाइम का रखा हुआ है. Then it should not be slimy. अगर स्लाइमी है, स्लाइम आपको पता है एक ट्रांसपेरेंट और नॉट रनी, नॉट वेरी सॉलिड एक कंपाउंड होता है. स्लाइम जैसे चिपचिपा टाइप्स कोई कंपाउंड होता है ना, ऐसे. तो द मीट शुड नॉट बी स्लाइमी and it should not have any type of odor, any type of smell. तो basically क्या क्या चीजें? it should not be neither pale pink or deep purple tinted, it should be firm, it should be elastic to touch, it should not be slimy, and should not have any type of odor, not good or not bad. Fine. Then next आएगा आपका slaughter house hygiene. Slaughter house means where the animal are getting cut down. तो दैट इज नोन एज स्लॉटर हाउसेस. तो जैसे हमारे एनिमल्स हैं, जहां पर एनिमल्स को स्टोर किया जाता है, जहां पर एनिमल को रखा जाता है, वहां पर भी बहुत प्रॉपरली सैनिटाइजेशन होना है, क्योंकि दैट कंटामिनेशन कैन लीड्स टू एनिमल कंटामिनेशन, एंड एनिमल कंटामिनेशन कैन लीड्स टू देयर फूड प्रोडक्शन कंटामिनेशन, व्हिच लीड्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल कंटामिनेशन और डिजीज कंडीशंस इन द इंडिविजुअल्स. तो सेम वही है कि स्लॉटर हाउसेस जो है दैट हैज टू बी हाइजीन प्रॉपरली. तो क्या क्या है? हाइजीन of slaughterhouse is important to prevent any type of contamination while during processing or dressing of the meat. यानी कि जो भी मीट का प्रोसेसिंग करना है या उसका ड्रेसिंग अप करना है, ड्रेसिंग अप मतलब उसको क्लीन आउट करना है, तो that has to be properly maintained. The hygiene of the slaughterhouse has to be properly maintained. Okay, so next third आता है आपका fish hygiene. तो first क्या था? मिल्क हाइजीन. सेकंड था आपका मीट हाइजीन. थर्ड है आपका फिश हाइजीन. तो फिश ऑलमोस्ट सिमिलर है. स्टेल फिश शुड बी कंडेम्ड. जो स्टेल फिशेज हैं या डेड फिशेज हैं या ओल्ड फिशेज हैं, दैट हैज टू बी डिस्कार्डेड प्रॉपर्ली. द साइन ऑफ फ्रेश फिश इज इट इज इन अ स्टेट ऑफ स्टिफनेस और राइगर मॉर्टिस. राइगर मॉर्टिस मतलब जो जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो धीरे धीरे टाइम प्रोसेसिंग के साथ में जैसे जैसे टाइम आगे प्रोसीड करता जाता है, बॉडी गेट्स टू बी स्टिफ.
यानी कि बॉडी को मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हार्ड हो जाती है बॉडी हार्ड हो जाती है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म, मसल रिलैक्सेशन खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर। तो जिस भी पोजीशन में किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हुई है, अगर वो काफी देर तक उसी पोजीशन में, तो यू कैन नॉट मूव द बॉडी और यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन, वो उसी पोजीशन में रह जाते हैं। तो जो फ्रेश फिश होती है उसका सबसे बड़ा साइन क्या है, तो द बॉडी इज इन राइगर मॉर्टिस, यानी कि यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द फिश, यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द फिश। जो फिश है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएगी। द गिल्स आर अ ब्राइट रेड, जो गिल्स होते हैं जिनकी हेल्प से फिश इज गेटिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी, फिश द गिल्स आर ऑफ ब्राइट रेड कलर। द आईज आर क्लियर एंड प्रोमिनेंट, जो आईज हैं दे शुड बी clear and prominent. So these are the fresh fish sign. तो अगर कोई stale fish है या मूव मतलब जो ओल्ड फिशेस हो जाती है ना, वो इजीली वो मूव करने लगती हैं। जैसे हमारी आर्टिफिशियल फिशेस होती है ना, आर्टिफिशियल फिशेस को आप इजीली मूव कर सकते हो, तो वो उस तरीके की आर्टिफिशियल टाइप हो जाती है। तो आर्टिफिशियल you can easily identify stale fish or old fish by moving the fishes, because जो fresh fish होगी that is in the condition of rigor mortis. Then next आएगा आपका egg hygiene. First completed your food milk hygiene, second completed your meat hygiene, third completed your fish hygiene, next is your egg hygiene. So it includes, although the majority of freshly laid eggs are sterile inside, the shells become contaminated by fecal material from the hen. तो बेसिकली क्या होता है कि जो इंटरनल मटेरियल है उसका मतलब inside of the shells हैं that is already being that is already sterile because that they are untouched, but the outer shell is contaminated. अगर एग्जाम्पल के लिए फीकल मटेरियल ऑफ द hen उसके ऊपर लग गया है, या जिन लोगों ने भी उसको हैंडल आउट किया है उन्होंने प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किया था, या जिस एरिया में ले डाउन किया है एग को वो प्रॉपरली हाइजीन नहीं है, तब भी जो शेल्स हैं वो कंटामिनेट हो सकती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग पैथोजेंस, एग्जांपल इज सैल्मोनेला। सैल्मोनेला से सबसे ज्यादा एग्स जो है वो कंटामिनेट होते हैं। देन एग्स कैन बी पास्चराइज्ड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। तो पास्चराइजेशन मिल्क का भी होता है एंड एग्स का भी होता है। तो मिल्क का पास्चराइजेशन कैसे होता है, मिल्क को 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल किया जाता है, फिर उसको 70 डिग्रीज पर लाकर 60 डिग्रीज पर लाकर सडनली उसका टेम्परेचर चेंज किया जाता है। तो दैट इज नोन एज पास्चराइजेशन। सेम प्रोसेस से हमारे एग्स को भी पास्चराइज्ड किया जाता है। इससे क्या होता है कि इट इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ द एग, यानी कि जो एग अभी 4 डेज में 5 डेज में खराब हो जाता है उसकी शेल्फ लाइफ 10 डेज 11 डेज तक हम इंक्रीज कर देते हैं। तो शेल्फ लाइफ मतलब किसी भी आइटम का एक्सपायर होने का जो टाइम होता है दैट इज नोन एज योर शेल्फ लाइफ। तो eggs and milk can be pasteurized to increase their shelf life of the product. Okay, नेक्स्ट आता है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बेसिकली आपके जो एग्स हैं वो किस तरीके से कंटामिनेट हो सकते हैं, या तो फीकल मटेरियल ऑफ द hen कैन कंटामिनेट द एग्स, देन द environment can contaminate the eggs, the food handlers hygiene can contaminate the eggs, then microorganisms कौन से included होते हैं, salmonella can only be transferred by contaminated eggs, then to increase the shelf life of the eggs it can be pasteurized for a period of time. So that is egg hygiene. Next comes to your fruit and vegetable hygiene. तो basically हम क्या करते हैं ये आप लोग मुझे बताओ कि प्रॉपर वेजिटेबल एंड फ्रूट हाइजीन के लिए हम क्या करते हैं। हर्ष, काजल, आकांक्षा, यस मैम। सारे बच्चे भाग गए? नो मैम। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई? मैं पूछ रही हूँ कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हाइजीन करने के लिए अभी देखो 4 चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, मिल्क हाइजीन, मीट हाइजीन, एग्स हाइजीन एंड
फिश हाइजीन में ये 4 चीजें आपको बता चुकी हूँ। जनरल बेसिक चीजें हैं ये कि हम किस तरीके से उनको प्रॉपरली हाइजीन करते हैं, किस तरीके से स्टोर करते हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी कि हाउ वी आर कीपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हाइजीनिक। हाउ? टेल मी, जल्दी जल्दी मैम बता उसे दो। मैम अच्छे से वॉश करके और रेफ्रिजरेटर में मैम उसको मैम प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, अच्छे से वॉश करके रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करके, और मैम रॉ वेजिटेबल्स को कुक करके। रॉ वेजिटेबल्स को कुक करके, तो वो तो जस्ट हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं ना, फूड बना रहे हैं। फूड बनाने से पहले किस तरीके से हम उसको स्पॉइल होने से बचाते हैं? मैम जर्म फ्री कर सकते हैं मैम, जर्म फ्री करने वाला आता है मैम केमिकल। केमिकल वॉशिंग। यस मैम। केमिकल वॉशिंग, जर्मिसाइड्स। यस मैम। हाँ, ओके फाइन, वेरी गुड। Okay, so basically fruits and vegetables क्या है? They host a very wide variety of pathogens in their own shelf. Like vegetables and fruits can host many pathogens like bacteria, fungi, protozoas, viruses, which can enter into the plant material during their harvesting. यानी कि जो भी जब जैसे क्रॉप्स होती है ना, आपने रूरल एरिया में देखा होगा, किसी किसी एरिया में आपका जो रिच गार्ड है उसका वो होता है, मतलब उसका खेती किया जाता है, लेडी फिंगर का फार्मिंग होता है। ये क्या है? ये साइट्स हैं टेबल्स एंड फ्रूट्स होस्ट। एक सेकेंड, somebody is calling me. Okay, am I audible? यस मैम। Okay. Yes, So ma'am. fruits यस Okay, fruits and vegetables host many pathogens like bacteria, fungi, protozoas while they are harvesting. जब उनको कट डाउन करते हैं, ये प्रॉपरली वो ग्रो कर गए हैं, उनको कट करके मार्केट में भेजे जाने हैं, तो उस टाइम पर while they are getting harvested, उस टाइम पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रूट्स के अंदर हैं, वेजिटेबल्स के अंदर हैं, वो उसको कंटामिनेट कर सकते हैं। Generally, proper washing and sanitization are employed to increase the shelf life and product safety. तो basically हम क्या करते हैं, घर लाते हैं उनको, या फिर जैसे फार्म एरियाज होते हैं ना जहां पर उनका हार्वेस्टिंग होता है, फार्म एरियाज में क्या करते हैं, एक रास्ता टाइप बना देते हैं, उस जगह में एक प्रॉपर वे होता है, उस जगह में कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई होता है। तो जैसे जैसे वो हार्वेस्ट करते जाते हैं, वहां पर उसी एरिया में वो वॉश करके उसको पैक करते चले जाते हैं, और फिर आगे उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू द एरियाज वेयर इट गेट स्टोर्ड एंड सप्लाइंग टू द नेक्स्ट सिस्टम। तो generally proper washing and sanitization is important, very important to increase the shelf life and product safety. Then freshly harvested products are routinely washed to remove any type of spoils. Then pesticide residues हैं, जैसे pesticides डालते हैं ना फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे, फसलें खराब ना हो जाए, इसलिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। सो टू रिमूव दैट सॉइल, जो भी सॉइल है उसको रिमूव करने के लिए, या पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने के लिए, इंसेक्ट्स अगर कुछ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए, प्लांट डेब्रिस है, कोई खराब प्लांट हो जाते हैं, वो पत्ते खराब पत्ते हो जाते हैं, वो फ्रूट वेजिटेबल पे चिपक जाते हैं, प्लांट डेब्रिस है, उसको रिमूव करने के लिए एंड माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग और प्रॉपरली washing the we are properly washing the harvested fruits and vegetables. Okay, I think there is some issue, तो मैं we will continue in next class. Okay.